Today we are going to discuss about the gymnosperms. Gymnosperms means these are known as seed plants and they are without flower. These are those plants which bears naked seeds, means seeds are not enclosed or covered by any envelope. ठीक है, open उनके seeds रहते हैं. तो बेसिकली जो जिम्नोस्पर्म है दे आर वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ प्लांट, ओनली अराउंड 900 स्पीशीज आर देयर विच आर प्रेजेंट, अदरवाइज दे आर फॉसिल्स. ठीक है, वो फिनिश हो गए तो बहुत कम हैं. अगर आप एंजियोस्पर्म्स की बात करो तो दे आर अराउंड 2,50,000 स्पीशीज़ हैं एंजियोस्पर्म्स की. बट इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म देर आर 900 लिविंग स्पीशीज़ आर प्रेजेंट. और जो बाकी के हैं दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स बिकॉज दे आर नॉट प्रेजेंट. Though that's why it is said that they are a small group of plant, and gymnosperms are basically woody plants which do not bear flower but bear seed on the inner side of the scale like leaves. And you can see in the diagrams also here, these are the diagrams of such kind of plant. These diagram, if you have a look on these diagram, you are able to understand that which kind of plants are they. So suppose this plant you can see easily and very clearly on your screen. So I am going to explain with the help of this that four orders of gymnosperm with living members are there: cycadales, coniferales, jingoales and nitales. These are not in your syllabus, so I am just telling you the name that gymnosperm is consist of four orders also. And one more important thing is that xylem in gymnosperm is made up of only tracheids and wood parenchyma. Wood fibers and vessels are completely absent in the gymnosperms. That's why gymnosperm wood is known as softwood rather than hardwood. इसीलिए हम इसकी लकड़ी को क्या बोलते हैं, soft wood बोलते हैं, the wood which is obtained from the gymnosperm, because they are made up of only tracheids and wood parenchyma, no fiber, no vessels. So this is the unique or new thing which you have studied in this topic. Now come to the another important thing about the gymnosperm. As I already told you that these plant do not bear flower. इनके अंदर flower नहीं आते, इनके अंदर ovules होते हैं which are not surrounded by the ovary wall, क्योंकि ovules तो ovary wall के अंदर generally होते हैं angiosperms में, पर इसमें नहीं होते. and जो seed बनते हैं वो cover नहीं होते किसी भी चीज़ से, वो open में रहते हैं. and gymnosperm include medium size trees और shrubs. तो उनका साइज़ भी वेरी करता है. यू हैव सीन दिस काइंड ऑफ प्लांट्स, आपने देखे होंगे ग्रो किए हुए, और छोटे साइज़ में भी पाम के प्लांट्स आपने देखे होंगे. तो दे आर इन द फॉर्म ऑफ श्रब्स, झाड़ियों जितनी हाइट, एंड टॉल ट्रीज जितने भी होते हैं, एंड रेड वुड. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. रेड वुड एंड इट्स बोटेनिकल नेम इज सिकोया, इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट प्लांट. सिकोया इज़ द नेम, SEQUOIA. Sequoia is one of the tallest tree species present on the earth. तो the root of generally these types of plants, that means gymnosperms के roots जो हैं they are of tap root kind. आप जानते हैं दो तरह के roots होते हैं, one is adventitious and another is tap. तो in gymnosperm only tap root is present, and this tap root is also of very important kind, because ये जो है tap root ये भी दो तरीके से होती है, because the roots are living with the association of fungus sometimes, like in the case of pinus plant. pinus plant में क्या होता है कि जो roots होती हैं, रूट्स के साथ साथ फंजाई जो है वो उसके साथ रहती है इन द फॉर्म ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन. यू हैव स्टडीड दिस थिंग इन द 9th स्टैंडर्ड, नेम सिम्बायोसिस आपने पढ़ा होगा. तो दिस इज़ द सेम थिंग दैट रूट्स जो हैं इन प्लांट्स के अंदर, जो रूट्स होती हैं उनके साथ एसोसिएशन में कौन रहता है, फंगस रहता है एसोसिएशन में साथ साथ. तो दिस एसोसिएशन इज नोट एज माइकोराइजा इन केस ऑफ पाइनस. वाइल इन सम अदर प्लांट्स लाइक साइकस, अगर हम साइकस की बात करें तो साइकस में क्या होता है कि उनमें भी जो रूट्स होती हैं उनमें एल्गी रहती हैं, सियानोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, दे आर नोन एज सियानोबैक्टीरिया, आप जानते हो. तो वो इनके एसोसिएशन में साथ साथ में रहती हैं. तो ये भी एक एसोसिएशन हो गया. नाइट्रोजन फिक्सिंग होती है साइनोबैक्टीरिया, इफ़ यू नो. तो दे आर ऑल्सो लिव विद दिस रूट्स. तो इस तरह के रूट्स को हम बोलते हैं कोरेलॉइड रूट्स, CORALLOID, कोरेलॉइड डी.
Coralloid means the association of blue-green algae with the roots, whereas mycorrhiza means association of fungi with the roots of the gymnospermic plant. And also the leaves are of two kinds in these plants. दो तरह की leaves होती हैं. One is known as foliar leaf, which are simple, this kind of leaf, typical leaf structure, and another is known as compound leaf. Compound is something like that, जैसे ये. These are known as compound leaf. इस तरह की leaves है ना, तो ये कहलाते हैं compound leaves. And you have seen these kinds of plant on the hill stations. हिल स्टेशंस पर अगर आप जाएंगे तो इस तरह के प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे. जस्ट लाइक कोन, यू हैव सीन दिस क्रिसमस ट्री. तो वो क्रिसमस ट्री वाला जो कोन है वो भी इसी तरह का आपने देखा है प्लांट, वो बनाते हैं जब आप डायग्राम, तो इस टाइप का प्लांट होता है, तो कोन शेप होता है. तो इफ़ यू सी दैट दे हैव टू काइंड्स ऑफ लीव्स ऑल्सो, तो दो तरह की लीव्स इनके अंदर होती हैं. वन आर कॉल्ड स्पाइंस. स्पाइंस मीन्स बहुत ही आपको पता है स्पाइंस की तरह ऐसे नुकीली सी पत्तियाँ, ऐसे लीव्स होती हैं. एंड अनदर इज़ फोलियर, एज आई टोल्ड यू, इस तरह से लीव्स होती हैं. तो वाई दीज टू काइंड्स ऑफ लीव्स आर प्रेजेंट? बिकॉज दे आर अडेप्टेड टू टॉलरेट द एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड एक्सेट्रा. सबको टॉलरेट कर जाती हैं. कॉनीफेरस में, कॉनीफेरस मीन्स ये जो क्रिसमस ट्री मैंने बनाया था, कोन्स वाले तरह के प्लांट, तो अगर इन पर बर्फ़ भी गिरती है तो आपको पता है अगर ये स्पाइनी लीव्स हैं इस तरह की, तो इस पर बर्फ़ जो है वो टिक नहीं पाती है ना, वो पिघल जाती है जल्दी से, और लीव्स को कोई नुकसान नहीं होता. इफ़ सपोज लीफ इज़ लाइक दैट शेप और इस पर आइस गिरती है तो क्या होंगी, लीव्स मर जाएंगी. और विंड से या ह्यूमिडिटी से अगर विंड भी तेज़ चलती है तो इस तरह की लीव्स को आपको पता है टीयर अप हो जाती हैं, फट जाती हैं, लेकिन इनमें तो आराम से एयर होके जा सकती है. तो दैट इज़ वाई दे विद स्टैंड विद द एक्सट्रीम टेम्परेचर, दे ओवरकम विद ह्यूमिडिटी एंड विंड एक्सेट्रा. तो दे हैव नीडल लाइक ऑफ लीव्स, क्योंकि ये अपने को बचाना चाहती हैं, तो एडेप्टेशन के लिए इनको अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे. तो दे हैव थिक क्यूटिकल, सो दैट उनको सन की उससे सोलर रेडिएशन से नुकसान ना हो, इंटेंस सोलर रेडिएशन से, एज वेल एज आइस जो बर्फ़ गिरती है, स्नो, उससे भी नुकसान ना हो. एंड संकेन स्टोमेटा. संकेन स्टोमेटा मीन्स स्टोमेटास आर प्रेजेंट इन साइड अ कैविटी लाइक स्ट्रक्चर. स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं कैविटी ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर, तो दे आर नोन एज संकेन स्टोमेटा. मीन्स अंदर की तरफ धंसे हुए स्टोमेटा होते हैं. और उससे क्या फ़ायदा होता है, दे रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन. ओपन में होंगे तो आपको पता है जल्दी वाटर लॉस होगा. अगर वो कहीं अंदर में थोड़ा गहराई में है, डेप्थ में है, तो वाटर लॉस कम होगा. तो ये अडेप्टेशंस हैं सो दैट दे कैन टॉलरेट ऑल दीज एक्सट्रीम कंडीशंस वेल. Now gymnosperm जो हैं they produce two kinds of spores. One are called microspore and another one is called megaspore. And these microspore, if plant produces two kinds of spores like micro and mega, then you call them heterosporous. That means two type के spores produce करते हैं. And these two kinds of spores are produced inside the sporangia, as I told you earlier in the case of pteridophytes कि there are sporangia, sac-like structure, bag-like structures where these spores are produced. So this is suppose sporangium, this red one, and these are the spore producing inside it, and these sporangium are present onto the sporophyll. That means leaf-like structure. If I draw it with the black color, you can see this is the leaf-like structure. तो इस पर ही पाए जाते हैं. तो इसको क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल. दैट मीन्स लीव बियरिंग माइक्रोस्पोरेंजिया इज नोन एज स्पोरोफिल, यानी कि स्पोर बियर करने वाली लीफ. एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल कोन, मेल स्ट्रोबाइली यू कैन से, और मेल कोन. नाउ यू कैन सी इन दिस डायग्राम हेयर, this one, this is our cone. If we separate a leaf from this, you can see like that. ये आपको ऐसे दिखेंगे, वुडन कोन होते हैं. इफ़ यू हैव सीन, अगर आप हिल स्टेशन पर गए होंगे तो आपने डेफिनेटली ये देखे होंगे कोन्स पड़े हुए, ये वुडी होते हैं. और ये उसी के एक लीफ को निकाल कर यहाँ दिखाया हुआ है. एंड हेयर इट इज़, बिकॉज ये फीमेल है तो दिस इज़ ओव्यूलिफेरस ओव्यूल. अगर ये मेल होता तो यहाँ पर स्पोरेंजियम आपको मिलते. तो इस तरह के कोन्स जो हैं वो प्लांट पे लगे होते हैं. इफ़ आई इनलार्ज दिस यू कैन सी द थिंग्स. यहाँ पर ये इस तरह से कोन दिए हुए होते हैं, यहाँ पर जैसे लगे होते हैं कोन या बीच बीच में. तो इस टाइप के कोन्स जो हैं वो पाए जाते हैं इनके अंदर. तो माइक्रोस्पोर्स के लिए वी आर टॉकिंग अबाउट हेयर, तो दैट मीन्स माइक्रोस्पोरेंजियम वहाँ पर पाए जाते हैं. मेल स्ट्रोबाइली कहते हैं इनको. एंड द माइक्रोस्पोर डेवलप्स इनटू गेमिटोफिटिक जनरेशन. एंड गेमिटोफिटिक जनरेशन मीन्स दे डेवलप पॉलन ग्रेन्स इनसाइड इट. तो बहुत सारे यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं. एंड पॉलन ग्रेन्स आर
known as reduced gametophyte. ये कहा जाता है कि जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनके जो gametophyte है it is very reduced. Why it is very reduced? Because it is in the shape of pollen grain. केवल pollen grains होते हैं and the development of pollen grain takes place within the microsporangia. And now the unique thing of pollen grains is that if you can see here, this is the diagram of the pollen grain and these are the wings. तो these pollen grain have the wings. तो जब भी हिल स्टेशंस पे अगर आपने गए हों देखा हो तो समटाइम्स यू फाइंड कि चारों तरफ येलो येलो सा हो जाता है. दिस इज़ कॉल्ड सल्फर रेन. व्हाट इज़ सल्फर रेन? सल्फर रेन इज़ नथिंग बट व्हेन एयर ब्लोज, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम में से निकलकर पॉलन ग्रेन्स जो हैं एयर में सस्पेंड हो जाते हैं बिकॉज दे हैव द विंग्स. तो ये बहुत लाइट इन वेट होते हैं तो ये हवा में बहुत टाइम तक सस्पेंड रहते हैं. तो आपको चारों तरफ येलो येलो ही दिखेगा. दैट्स वाई कॉल्ड इट सल्फर रेन. तो दिस इज़ द विंग्ड पॉलन ग्रेन. दिस इज़ द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट किंगडम. सारे के पॉलन ग्रेन्स में विंग्स नहीं होते. तो दिस इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कि ये एक स्पेशल चीज़ है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं. एंड दिस इज़ द माइक्रोस्पोरेंजियम. ये माइक्रोस्पोरेंजियम का डायग्राम है. A1 मेल कोन है ये पूरा. इसको बीच में से स्लिट करा हुआ है तो ये आपको ऐसे ओपन दिख रहा है. अदरवाइज़ ये पूरा ऐसे मेल कोन दिखता है जैसे कि ये दिख रहा है आपको फीमेल कोन लाइक दिस. दिस इज़ द मेल कोन. एंड व्हेन यू जस्ट स्लिट इट, उसको बीच से आपने कट कर दिया सो दैट आप चीज़ों को क्लियर देख पाएँ. तो यू कैन सी देयर इज़ द माइक्रोस्पोरेंजियम. ये माइक्रोस्पोरेंजियम है एंड देयर आर द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर इन इट. एंड देन दिस C1 इज़ द माइक्रोस्पोरोफिल 1. अगर एक में ब्रेक करके आप ऐसे रखोगे तो आपको ये ऐसे दिखाई पड़ेंगे. दीज येलो वन आर द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड माइक्रोस्पोरोफिल का ही ये साइड व्यू है. एंड दिस इज़ द माइक्रोस्पोर. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द microsporangium, microspore and the gametophyte. So this pollen grain is known as gametophyte. This is male gametophyte and this is in the reduced form. ये reduced है, बहुत ही छोटा है और ज़्यादा structure नहीं है कुछ इसका. Now come to the next, that is megasporophylls. So there are certain leaves which bears the female cone are known as megasporophyll. वैसे leaves जो male cone bear करें माइक्रोस्पोरोफिल, जो फीमेल कोन को बियर करें दैट आर द मेगास्पोरोफिल. तो दिस इज़ द वन फीमेल कोन. यू कैन सी इन योर डायग्राम दिस वन इज़ द फीमेल कोन ऑफ पाइनस. इट इज़ गिवन हेयर. एंड जो फीमेल स्ट्रोबाइली पे ये हो गया सारा. स्ट्रोबाइलस हो गया, फीमेल स्ट्रोबाइलस जिसको हम बोलते हैं या कोन आप बोलते हो. तो सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द साइकस. तो साइकस की स्पेशल चीज़ क्या होती है कि मेल एंड जो फीमेल कोन्स होते हैं डिफरेंट ट्री पे होते हैं साइकस के अंदर. पर किन्हीं किन्हीं प्लांट में ये सेम प्लांट पे मेल एंड फीमेल कोन्स दोनों पाए जा सकते हैं. तो मेगास्पोर मदर सेल होती है विच डिफ्रेंशिएट फ्रॉम द सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस. क्योंकि आपको पता है कि ये माइक्रोस्पोरोफिल है तो यहाँ पर क्या होगा, ओव्यूल होगा, ओवरी होगी. ओवरी के अंदर क्या होंगे, ओव्यूल्स होंगे. और जो चारों तरफ का टिश्यू है दैट इज़ कॉल्ड न्यूसिलस टिश्यू. न्यूसिलस, इट इज़ नॉट न्यूक्लियस, इट इज़ नोन एज न्यूसिलस. If I write the spelling, nucellus, this is the spelling of it. तो ये nucellus है ना कि nucleus है. And nuclear tissue is present inside the ovule. जब हम ovule का structure draw करते हैं तो suppose this is embryo sac, ये embryo sac हो गया और female gametophyte हो गया. तो इसके किनारे किनारे का टिश्यू अगर I change the color तो ये जो किनारे का टिश्यू होता है that is called न्यूसिलर टिश्यू. तो ये न्यूसिलर टिश्यू से ही डेवलप होते हैं. जो फीमेल के स्ट्रक्चर के मैं बारे में बात कर रही हूँ तो मेगास्पोर मदर सेल कहाँ से डेवलप होते हैं, दे डिफ्रेंशिएट फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यूसिलस. मीन्स इन्हीं किसी सेल में से ये डेवलप हो जाते हैं मेगास्पोर मदर सेल. एंड न्यूसिलस इज़ प्रोटेक्टेड बाई इन्वेलप्स एंड द स्ट्रक्चर कंपोजिट स्ट्रक्चर. तो ये जो न्यूसिलस है ये प्रोटेक्टेड रहता है, यानी कि खुले में पड़ा रहता है ये. एंड ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द माइक्रोस्पोरोफिल, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ. एंड मेगास्पोर मदर सेल देन क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल का इट डिवाइड्स, ये डिवाइड करती है माइटोटिक डिवीजन से एंड फॉर्म 4 मेगास्पोर्स. ये ऐसे करके 4 मेगास्पोर्स को बनाती है जिसमें से 3 मेगास्पोर तो डीजनरेट हो जाते हैं. एक केवल 1 मेगास्पोर बचता है जो कि सराउंडेड रहता है मेगास्पोरेंजियम से. दैट मीन्स न्यूसिलस से सराउंडेड रहता है. ये सपोज ये 1 एक बचा हुआ है यहाँ पे, बाकी 3 डीजनरेट हो गए. तो दिस डेवलप्स इनटू फीमेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट हैव 2 और मोर आर्चिगोनियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन. तो इसके अंदर या तो 2 इनके अंदर आर्चिगोनियम होंगे या 2 से ज़्यादा आर्चिगोनियम जो है वो प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स. तो द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो
प्रेजेंट विद इन द माइक्रोस्पोरेंजियम, वो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही रहता है, अभी ये माइक्रोस्पोरेंजियम से बाहर नहीं गया। ये डेवलपमेंट वही होता है बिकॉज ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में यू हैव सीन इन जिम्नोस्पर्म ऑल्सो that the male and female gametophyte do not have an independent free living existence। तो अगर बायोफाइट पेडोफाइट करो तो उसमें तो उनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती थी, लेकिन जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट अलग से नहीं रहते, फ्री नहीं रहते, दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजियम, वो स्पोरेंजियम के अंदर ही रहते हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है अभी ये स्पोरेंजियम के अंदर हो रहा है, सारा कुछ स्पोरेंजियम से बाहर नहीं आया, ये इंडिपेंडेंट होकर नहीं रह सकते। So the pollen grain is released from the microsporangium and with the help of air current, as I told you, with the help of air or air current you can say, they come in the contact with the ovules which are mature now and which are also present on the megasporophyll. The pollen tube carrying the male gametes grow towards the archegonium in the ovule and discharge their content near the mouth of the archegonium. So fertilization takes place and zygote develops into the embryo and the ovules into seeds, because zygote बनेगा, zygote से embryo बनेगा and then ovule and seed बनेंगे। तो these seeds are not covered, this thing you have to remember कि इनके seeds जो हैं वो covered नहीं होते। So this is all about the gymnosperms. These are the various diagrams which are given. Two types of leaves they have shown. These are the needles, these are the male cones, and the LS also they have given so that you can see longitudinal section. These are also the cone, the various developmental years, that means first year cone, second year cone, third year cone, such kind of progressive development of cone they have shown. Then the TS, that means LS, that means structure which is split, ये कट करके आपको बीच से दिखाया हुआ है। दिस इज द एग्जैक्टली इन लार्ज लीव्स, ये जो बनी है स्कोन्स के अंदर आपको लीव्स इसमें जो होंगी, इसमें जो ये जो दिख रही हैं, तो अगर एक को आपको सेपरेट करोगे तो यू कैन सी लाइक दिस। एंड दीज आर द ओव्यूल्स, एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पर ये ओव्यूल हैं, ओव्यूल के अंदर आपको फीमेल गैमेटोफाइट और यू कैन से आर्चिगोनियम प्रेजेंट मिलेंगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द जिम्नोस्पर्म।